Hello viewers, my name is Shabab Khan. I am your teacher, friend and guide. Welcome to all of you in Gaya Guidance program. So, you are in crash course program and today is my second lecture on what exactly is language and literature. So, you will come to know what is the basic difference between language and literature. Many students are not aware of it, these two terms, क्योंकि आपके ये इंटर के सिलेबस में शामिल है. आपका जो सिलेबस लैंग्वेज और लिटरेचर में बटा हुआ है. तो मैं चाहता हूं कि आपको भाषा और साहित्य का क्या कंसेप्शन होता है, इसके क्या अर्थ होते हैं और इसको अपनी लोकल भाषा में आप कैसे बेहतर ढंग से समझ सके. सो आई विल ट्राई टू एलाबोरेट इट. वेरी इंपॉर्टेंट. Language generally means communication, or I will let you know language can never exist. Language and literature both have a very umbilical relationships. They cannot live without each other. Both have great relationships. So students have many confusion in their mind. So I would like to explain it. Students, you must first and foremost to enjoy literature, to get aesthetic pleasure of literature, you must improve your language first. You must acquire proficiency in language first. Many Indian students, they don't perform better because of poor language background. भाषा में पकड़ नहीं होने के कारण वो अपने लिटरेचर को बेहतर नहीं कर पाते हैं और अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उसको अपनी भाषा में समरी नहीं लिख पाते हैं. इसीलिए मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव है कि सबसे पहले आप भाषा को साहित्य के जरिया बेहतर करें, उसे बार बार पढ़ें और सीखें. लैंग्वेज जो ये टर्म आया है, दुनिया की जिस तरह से ओल्डेस्ट लैंग्वेज लैटिन, जिस तरह से संस्कृत भी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, उसी तरह से लैटिन भी दुनिया की पहल है. जिस तरह से आज अंग्रेजी को दुनिया की वर्ल्ड लैंग्वेज का गौरव प्राप्त है, उसी तरह से पहले दुनिया की भाषा लैटिन लैंग्वेज होती थी. तो ये जो वर्ड लैंग्वेज आया है, इसका मतलब ये लिंगुआ वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टंग, जबान. एंड द कॉमनेस्ट डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज इट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. भाषा का जो शॉर्ट में कहें तो ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. हम अपने विचारों को कैसे बेहतर ढंग से अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी तरह के ऑडियंस के साथ बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करें. ये भाषा के जरिए हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. शॉर्ट में इट इज अ मीन्स ऑफ लेटिंग अदर पीपल नो व्हाट वी हैव इन अवर माइंड. ये भी एक बेहतर डेफिनेशन है कि हमारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इन माई माइंड, व्हाट इज इन माई हार्ट, हाउ टू एक्सप्रेस इट. जो हमारे जहन में और दिमाग में, दिल में है, अपने विचार धारा को, अपने थॉट को, फीलिंग को और इमोशन को कैसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें, ये भाषा का डेफिनेशन है. इन अदर वर्ड्स, language enable us to convey what we are thinking or feeling, जो मैंने दिखाया है. Very important. We also use signs and gestures as a means of conveying our ideas because it. सबसे पहले मैं बता देता हूं, लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, only we use 7% content. Your sound matters.
your body language matters, your gesture matters, your pronunciation matters, but we focus on content. It is a secondary. First and foremost, improve your modulation of speech, sound, learn the gestures. So we have also given here definition by one of the best dictionary of the world, that is Oxford Advanced Learner Dictionary. It is a very good dictionary. A dictionary, every student must keep a dictionary. If you want to learn English, make it your good friend, make it your best friend, so that you can command over word power, you can gain proficiency in the language. Language is a system of sounds, words and patterns, etc., used by humans to communicate thoughts and feelings. In language, sounds, words, patterns, very important. Learn from the beginning. You can learn. You can listen to some native speakers, listen to some great teachers, so that you can improve your sound, you can improve your pronunciation, you can gain mastery in sound. English is a very confusing language. I still learn. I had a much problem in pronunciation, even if I am not perfect. So we have to learn it. We are Indian. So improve from the beginning, and definitely one day you will feel proud of yourself. वर्ड्स इम्प्रूव पैटर्न है ना. एक चीज जो मेरे जहन में बात आती है, मैंने काफी ट्रेनिंग भी की है इस संबंध में. आई हैव स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम. इंग्लिश लैंग्वेज इज स्किल बेस्ड सब्जेक्ट दैट देन कंटेंट बेस्ड. टू टर्म्स, स्किल और कंटेंट. इट इज नॉट लाइक हिस्ट्री, इट इज नॉट लाइक जियोग्राफी, इट इज नॉट लाइक theoretical based subjects. Language are skill based subjects. Like, you can never gain mastery in language knowing the rules only, learning the theory only, cramming the rules of grammar, unless you practice it, unless you use it. So you can never learn language unless you use it. अब भाषा पर कभी पकड़ नहीं कर सकते हैं. I remember my childhood days, जब भाषा सीखने के लिए हम लोग, याद कीजिए, लैंग्वेज यू कैन नेवर गेन मास्टरी इन वन डे. इट इज नॉट वन डे प्रोसेस, इट इज नॉट 1 month प्रोसेस, it is not 6 month process, it is not 1 year process, it is a lifetime process. Language learning is a lifetime process. As long you are alive on this planet, you have to improve your language every day. You have to improve your word power, you have to improve your pronunciation, you have to improve some phrases, you have to learn some different structures of the language, so that you can gain mastery in the language. So learning language is like driving a car. Learning language is like cooking food. Suppose somebody has given you key of bike and he told you how to start and how to, he has given you theoretical concept. Do you think you are able to drive car or bike? Never, because you have never done practice it. Suppose somebody has given you how to cook food, all things they have narrated you and told you. Can you do you think you will cook food? No, it's not, because you have never done practice. Same way you can, it is like language. It is called, language comes by skill developed by practice, patience, drilling and presentation. Very important chapter, very popular subject, linguistic. The scientific study of language is linguistics. ये हर क्लास में पढ़ाया जाता है कि linguistics में, जिसमें phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, etc. many things are taught. देखिए, लैंग्वेज स्किल्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इन 2 parts. लैंग्वेज स्किल्स को 2 हिस्सों में बांटा गया. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 parts. फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्किल, सेकंड इज लैंग्वेज स्किल्स. लिंग्विस्टिक स्किल्स में क्या आते हैं? वोकैबुलरी. इन इंग्लिश देयर इज नो भाषण. बहुत से बच्चे लोग बोलता है भेरी. अरे भैया, इट इज ऑकवर्ड टू हियर. देयर इज नो भ इन इंग्लिश. सिंपली से व very. So we don't say vocabulary, say it simply, say vocabulary, right? So simple.
Many people tell they write mistake also in write grammar. In English last say grammar. जितना ज्यादा आपका वर्ड पावर रहेगा उतना आपके पास थॉट होंगे, आइडिया होंगे, विचार होंगे. लर्न एवरी डे 10 न्यू वर्ड्स. रीड न्यूज़पेपर, रीड मैगजीन, read your storybook, read your rainbow, read a story, anything read every day. This is a very pronunciation means उच्चारण. बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं. Repeat, practice, and you will get. Even I was not able to pronounce when somebody asked me, Sabab, can you pronounce this word? And I failed to pronounce the first time. But when I practice, now I am confident enough to pronounce this word pronunciation, right? Means how to articulate word. अब काफी ये इट इज अ साइन ऑफ एजुकेटेड पर्सन. आप हिंदी को बोलते हैं और उच्चारण में बोलने में कमी आती है तो लोग गेस कर लेते हैं कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा आदमी है. इट इज अ साइन ऑफ योर एजुकेशन. तो इसलिए प्लीज व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड, लर्न इट्स ग्रामर, लर्न इट्स प्रोनाउंसिएशन, and learn its uses, how these words are used in different context. एक अंग्रेजी में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत लेयर ऑफ मीनिंग होते हैं. और अंग्रेज दुनिया में बहुत सारे साउंड की भी, अमेरिकन इंग्लिश का साउंड अलग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश का साउंड अलग होता है, इंडियन इंग्लिश का साउंड अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का अलग साउंड होता है. लेकिन दुनिया में समानता करने के लिए जो हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोली जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश को दुनिया की बेस्ट इंग्लिश मानी जाती है. अमेरिकन आर लॉ ब्रेकर्स, but British are the law makers. British English is one of the model English in the world and we follow. Every countries in the world they follow British English. And structures. तो भाषा में महारत करने के लिए 4 चीज को महारत कीजिए आप. वोकैबुलरी महारत कीजिए, ग्रामर को इंप्रूव कीजिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा कीजिए, दुरुस्त कीजिए, और स्ट्रक्चर जो टेंस के स्ट्रक्चर है, वॉइस के स्ट्रक्चर है, मॉडल के स्ट्रक्चर है, बहुत सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डेफिनेटली आपको भाषा महारत आएगी. इसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स. लेकिन दुनिया में जो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज नॉट टॉट इन इंडिया एंड इन आवर नेबरिंग कंट्रीज. इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. इट इज अ टॉट एवरीवेयर इन ऑल कंट्रीज. इट इज अ टॉट एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश. So we follow these 4 techniques, 4 methods of language. Suppose you are like a child, language comes by L, S, R, W. Suppose you have taken birth. What you do first? This is my ear. First of all, you listen. Listen to your father. Listen to your mother, your family. Listen to your neighborhood people, neighboring people. And automatically you comprehend the words and thoughts and ideas and language automatically comes. I have seen many people, they have never been to schools and college, but they got a good environment of English speaking people. They started speaking English. Same way, do you ever join Hindi class in your family? Even if you start speaking good Hindi. And because it is your mother tongue, in the same way, भाषा की शुरुआत listening से होती है. कहा गया है God has given us 2 ears and a mouth, 1 mouth. So listen double, speak less. So and Shakespeare is one of the renowned author of the world, very famous author. He said, a good listener can be good speaker. Previously it was not taught in Indian school listening skills. But nowadays it has been included in our syllabus. Even it is included in the syllabus of Bihar board examination also. So second thing is speaking. Indians are very poor at listening and speaking. These 2 skills are completely ignored. जब बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं सिखाया, डायरेक्ट उसको रीडिंग और राइटिंग सिखाया जाता है. लास्ट में ना उसको लास्ट में रीडिंग आती है ना राइटिंग आती है. सबसे पहले फर्स्ट लर्न लिसनिंग. जब सुनेंगे तो बोलेंगे, और जब बोलेंगे ऑटोमेटिक पढ़ेंगे. आप जितना कहा जाता है, एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा वक्ता बनता है, एक अच्छा पढ़ने वाला एक अच्छा लेखक बनता है. तो ये 4 चीज L, S, R, W, इसे आप फॉलो करें
दुनिया का जो बेस्ट एग्जामिनेशन होता है विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए, आइल्स एग्जामिनेशन, टोफेल एग्जामिनेशन, वो लोग जो अपना सिलेबस फ्रेम किए हैं और जो आईसीएसई के स्कूल है, सीबीएसई स्कूल के हैं, वो सारे इसी पैटर्न को दुनिया आज डेट में अपना रही है। जो ग्रामर का जो आउटडेटेड मेथड है, दैट इज नॉट अप्लाइड नो लॉन्गर। We follow, this is the language skills, improve your linguistic skills as well as language skills। मैंने बताया vocabulary के ऊपर, the word, the more you have word power, the more you have ideas, है ना। तो word is very important tool। आप कम से कम ऑक्सफोर्ड और लॉन्गमैन डिक्शनरी दुनिया की बेहतर डिक्शनरी मानी गई है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इसमें दो तरह के वर्ड है, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। 5000 word, 3000 words which are the very commonest word which we use in our day to day life। So remember all the words and use it in your day to day life and definitely। और पैसिव उसे बोलते हैं हम लोग, एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। पैसिव वोकैबुलरी उसे बोलते हैं जो वर्ड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी हैं जो आप देखेंगे, वर्ड को इंप्रूव करेंगे, जो कंपटीशन में आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। सिनोनिम्स, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, एंटोनिम्स, वर्ड विच हैव opposite meaning, homophones, words which have same sound, different homonym, homograph, practice, phrasal verb, idioms and phrases, we'll discuss later, it has been a test। grammar is very important but not most important। ग्रामर पढ़ने से सिर्फ आप अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आएगा। मैंने ग्रामर का काफी डिटेल स्टडी किया है, बट आप ग्रामर काफी पढ़ते हो लेकिन उसका यूज नहीं करते हो तो ग्रामर बेकार है, कचड़ा है। डॉक्टर आप के पास जाते हैं, एक डॉक्टर से चेक कराया, दवा कुछ वो दे दिया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो इलाज किया, दवा कुछ दे दिया, लेकिन दवा किसी डॉक्टर की खाया नहीं, दवा क्या बेकार, इट हैज नो यूज। तो जब तक आप एक ही ग्रामर की किताब ले, रेन मार्टिन ही पढ़े, नेस्फील्ड ही पढ़े, अच्छे उतर एक बुक पढ़ ले, दिस इज मोर देन इनफ। ज्यादा ग्रामर का डिजीज मैंने देखा है, आई हैव मेट मेनी अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश एंड इवन आई एम इन टच विद देम, they are not master of grammar, spite of that they speak English। अभी दुनिया में फोकस किया जा रहा है कि बच्चे के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो, लेकिन एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, यू हैव टू नो बेसिक ग्रामर, यू हैव टू गेन, बिकॉज जो सिलेबस आपका इंटर में शामिल है उस पर तो आपको सीखना है, पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कोर्स करें। लेकिन ग्रामर का जो डिजीज है उसे नहीं बनाना है। ग्रामर जरूर आप पढ़ें अच्छे ढंग से। आप प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या पढ़ना है, इट इज टॉट इन एमएस क्लास। आई हैव डन वन इज कोर्स फ्रॉम इफ्लू, English Foreign Language University Hyderabad। there is a very popular course for the teachers, phonetics and phonology। phonetic transcription जानेंगे, सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, रिदम, इंटोनेशन, पैटर्न, ये फोनेटिक्स में, प्रोनाउंसिएशन में सारे स्किल्स आते हैं जो इम्प्रूव किया जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था काफ़ी डिटेल में अपने पिछले। जो पैटर्न होता है, जो ग्रामर का आसान रूप है, जो ग्रामर को आसान बना दिया गया, सिंप्लीफाइड कर दिया गया, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ग्रामर। तो आप इसके जरिए आसानी से ग्रामर पर, लैंग्वेज पर महारत हासिल कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स, कैसे कैसे यूज करेंगे, ये सारा चीज़ कॉमन पैटर्न्स है, इसे आप जो है एक्सप्लेन किया था। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में मैंने अभी बताया था आप लोगों को। लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग। तो 2 स्किल्स जो हमारी है, लिसनिंग और रीडिंग, इसे कहा जाता है इनपुट स्किल। इनपुट स्किल कंप्यूटर में टर्म आता है, कंप्यूटर टर्म है इनपुट और आउटपुट। जितना आप सुनोगे ऑटोमेटिक उतना अच्छा बोलोगे, उतना अच्छा प्रोड्यूस करोगे। जितना ज्यादा पढ़ोगे, मैंने बताया था अभी पिछले, उतना ज्यादा। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, पैसिव स्किल और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बोलते हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स, एक्टिव स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल्स जो हमारी है स्पीकिंग और राइटिंग एज आउटपुट। सो improve your very important literature।
लिटरेचर के बारे में जानना, जैसे मैंने लैंग्वेज अभी आपको बताया, समझाया कि लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का जनरली मीनिंग ये होता है जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे पास विचारधारा पैदा हो रही है, जो हमने किताब पढ़ के विचारों को जनरेट किया है, उसको अपनी बातों को कैसे लार्ज ऑडियंस के साथ शेयर करें, कैसे बेहतर ढंग से कम्युनिकेशन कर ले ताकि हमारी बातों को लोग समझ ले, चाहे वो स्पोकन ढंग हो चाहे रिटर्न ढंग में हो। ये लैंग्वेज का कंसेप्शन है। इट इज जनरली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन लिटरेचर क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज लिटरेचर? जिस तरह से लैंग्वेज लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब टंग, लिंगुआ मतलब टंग होता है, उसी तरह लिटरेचर जो लिटरेट वर्ड से आया है विच मीन्स राइटिंग। लिटरेचर का जनरली मीनिंग होता है राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेकिन जनरली कंसेप्शन ये होता है कि लिटरेचर एनीथिंग दैट इज रिटन और प्रिंटेड। लेकिन लिटरेचर का डेफिनेशन ये नहीं है। दिस इज नॉट लिटरेचर। हेगल के वन ऑफ द ग्रेट थिंकर, उनके अनुसार लिटरेचर इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिटरेचर होता है क्या? आप किसी के पास जाएं, किसी डॉक्टर एमआर के पास जाते हैं, वो अपना निकालते हैं, बोलते हैं कि दिस इज ए लिटरेचर। कोई कंपनी वाला गया हमारा तो वो दिखाता है कि आपका क्या ब्रोशर क्या है, दिस इज ए लिटरेचर। उसे लिटरेचर नहीं कहते हैं। लिटरेचर का मतलब होता है कॉमन टू ऑल। एक ऐसी राइटिंग जिसका डॉक्टर एंजॉय करेगा, जिसको इंजीनियर एंजॉय करेगा, साइंटिस्ट एंजॉय करेगा, दुनिया का हर व्यक्ति। लिटरेचर किसी एक सेक्शन व्यक्ति के लिए नहीं लिखी जाती है, लिटरेचर किसी एक ग्रुप के लिए नहीं लिखी जाती है। एमआर की दवा एक सर्टेन आदमी के लिए है, एक सर्टेन सेक्शन के लिए है। किसी कंपनी का प्रचार हर आदमी एंजॉय नहीं कर सकता है, किसी के। तो लिटरेचर जो होता है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं, दुनिया के हर लोग, और सभी लोग के लिए वो कॉमन है। किसी की भी शॉर्ट स्टोरी, किसी की भी नॉवेल, किसी के भी। तो लिटरेचर मीन्स जो होता है दुनिया में जितने सारे आर्ट है, जितनी सारी कला है, जिस तरह से ड्राइंग एक कला है, मूर्ति स्कल्पटर का एक कला है, गाना एक कला है, खाना बनाना एक कला है, डांस करना एक कला है, सारे ये कला आर्ट है। दुनिया में जितने सारी कला है उसमें सबसे बेस्ट कला, सबसे बेस्ट आर्ट लिटरेचर को कहा गया है। लिटरेचर इज द बेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए लिटरेचर को हेगल ने कहा है सुप्रीम आर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे जो है लिटरेचर इज लाइफ। लिटरेचर का थीम क्या होता है? लाइफ होता है, जिंदगी होती है। जिंदगी के डिफरेंट फेज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरेचर इज लाइफ दैट वी कैन एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज। जीवन के डिफरेंट अनुभव को हम लोग भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ थॉट, यू कैन एक्सप्रेस। सो ये बच्चों को अंदर कंफ्यूजन होता है कि लैंग्वेज क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है। लेकिन लैंग्वेज और लिटरेचर में दोनों का रिश्ता गहरा है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। अगर लैंग्वेज को अलग कर देंगे तो लैंग्वेज की अहमियत खत्म, अब भाषा से लिटरेचर को निकाल देंगे तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हेगल तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर इज ए कंपोज ऑफ दोज बुक विच रीजन ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर स्टाइल ऑफ देयर जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट। लिटरेचर उसे कहेंगे जो जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए हो, सभी के लिए हो। इथिक्स की किताबें सभी के लिए, वैल्यू सभी के लिए, मॉरल टीचिंग सभी के लिए, जो एवरी ऑडियंस कैन एंजॉय इट, everyone can learn it and everybody can make change it. That is a literature. Literature, many authors have given their definition of many more literatures. काफी लोगों ने दिया है। Literature is a mirror of life. It is both criticism and interpretation of life. Literature जिंदगी का आईना होता है। कहा जाता है कि कोई इंसान की जिंदगी 60 साल की होती है। 60 साल को इंसान धरती पर जीता है, वो एक जिंदगी जिया। लेकिन अगर वो 60 नॉवेल पढ़ता है तो उसने 60 लोगों की जिंदगी को जिया, 60 लोगों के एक्सपीरियंस को उसने शेयर किया। इसीलिए लिटरेचर एक इंसान के एक्सपीरियंस को इनरिच कर देता है, उसके वैल्यू को ब्रॉडन कर देता है, और लिटरेचर का आदमी को उसके सोल को प्यूरिफाई कर देता है।
literature is a vital record of men, what have they seen, what they have felt, what they have experienced in their life. So very important literature. देखिए ये मैंने लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में डेफिनेशन भी है. लैंग्वेज इज, है ना, बोथ स्पोकन एंड रिटन. लिटरेचर इज जनरली रिटन. लिटरेचर इज जनरली रिटन. Language first came, then literature was developed later on. See many more things. देखिए इंग्लिश का जो सबसे जो टेढ़ा चीज है वो है प्रोनाउंसिएशन. फिर ये वर्ड आ गया GENRE. दिस इज कॉल्ड जानरा, दिस इज कॉल्ड जाना. इट मीन्स काइंड. लिटरेचर के हिस्सों में बांटा गया. अभी मैंने आपको बताया कि लिटरेचर जो आपका रेनबो लिटरेचर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. वो लिटरेचर था. ग्रामर आपका लैंग्वेज था. स्टोरी ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री था जो मैंने बताया था. तो पोएट्री और प्रोज. प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस होते हैं? प्रोज जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग की होती है. न उसमें म्यूजिक होता है, न उसमें रिदम होता है, न उसमें इंटोनेशन होते हैं, न उसमें जॉनसन एक मशहूर पोएट के मुताबिक इट इज अ मेट्रिकल. पोएट्री इज अ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन. Poetry is based on meter and it is a Hazlitt expressed in own words of the given definition of the poetry. It is the expression of imagination and passion. एक इंसान का जो imagination और passion जो दिमाग में होता है उसको express जो करता है. Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of power full of feelings. तो poetry आप इतना समझ लें शॉर्ट में, इट इज रिटन इन स्टैंजा लाइक प्रोज रिटन इन पैराग्राफ. एंड प्रोज जो होते हैं नॉन मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होते हैं. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग. राइटर जस्ट सिंपली एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन पैराग्राफ. ड्रामा के बारे में कहा गया है कि ड्रामा ये सब जानरा है, काइंड्स ऑफ लिटरेचर है. ड्रामा इज ए मल्टीपुल आर्ट, कंपोजिट आर्ट, नैरेटिव आर्ट. ड्रामा सिंगल आदमी प्रेजेंट नहीं कर सकता है. ड्रामा के लिए पूरी टीम होती है, पूरे सेटअप होते हैं, उसमें लाइट होता है, कैमरा होता है, जेस्चर्स होते हैं, ड्रेस होते हैं, मल्टीपुल थिंग्स होते हैं उसमें. इसीलिए इसे कहा गया है ड्रामा को मल्टीपुल कंपोजिट ऑफ नैरेटिव आर्ट. लेकिन नोवेल जो होता है पॉकेट थिएटर. यू कैन एंजॉय इट अलोन. नोवेल इट इज अ वेरी पॉपुलर इन टुडेज वर्ल्ड. इन 20th century, 19th century it was very popular. Drama was popular in 17th century. These two also genre of literature, autobiography and biography. Autobiography means when a writer, when author, when great personality of the world, they write their story themselves. That is the autobiography. जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा. जब कोई ऑथर अपने जीवन की कथा को, जैसे महात्मा गांधी का आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. APJ Kalam has also written an autobiography. Jawaharlal Nehru wrote Discovery of India. Many great eminent authors of the world have written their autobiography. Similarly, biography, when you write about others, when you write about great personality and authors, that is exactly biography. There are some differences between prose and poetry. It has been attached and I have explained in my own words, but it will be attached and you will read it and you will enjoy it. So hope all of you have understood the basic conception of the term language and literature. Both have great relationships and one cannot exist without other. So language and literature, you must have got the basic idea about language and literacy. Hope all of you have understood it and you have enjoyed it. Please, it is my humble request to all of the viewers, like, share
and write your comment also, and share it maximum people so that they can learn it. Thank you all of you. Have a wonderful day.